Okay, hello everyone. So today we are going to start with a new chapter, that is probability, chapter number 16. Okay, so hope the last chapter, which was chapter number 6, is clear to you. Yes, so today I am going to start a new topic, that is chapter number 16, probability. Now, what is probability? Just see. First, I will explain the theory, okay? Because in this, theory is important. The first exercise is based on the theory itself. So, we have to do the theory, okay? So, the first starting page of chapter number 16, probability, see, learning objective. So, I will read and explain it, okay? So, concept of probability is used in accounting and finance to understand the likelihood of occurrence or non-occurrence of a variable. सो व्हाट इट इज सेड कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो किस लिए यूज़ होती है अकाउंटिंग और फाइनेंस में, ताकि हम समझ सके कि क्या लाइकलीहुड है ऑफ ऑक्यूरेंस और नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ अ वेरिएबल. मीन्स फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम कहते हैं कि मैंने एक कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो अगर एक कॉइन मैंने अगर टॉस किया है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हेड गिरेगी या टेल गिरेगी. यस, क्या पॉसिबिलिटी है. सो ये हम पता करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं. ठीक है, तो दैट इज नोन एज to understand the likelihood of occurrence or non-occurrence of a variable. So जैसे मैंने कहा कि अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हेड गिरे, तो ऑक्यूरेंस हेड गिरने की क्या पॉसिबिलिटी है या टेल ना गिरने की क्या पॉसिबिलिटी है. तो दिस इज व्हाट इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी मीन्स. ठीक है, तो इट हेल्प्स इन डेवलपिंग फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इन विच यू नीड टू डेवलप एक्सपर्टाइज एट एन एडवांस स्टेज of chartered accountancy course. So what it is, it helps in developing financial forecasting. So financial forecast करने में हमें मदद करती है, in which you need to develop expertise, जिसमें हमें expertise होने की ज़रूरत होती है at an advanced stage of chartered accountancy. ठीक है, तो chartered accountancy में probability plays one of the major role. ठीक है, बहुत important है. So let's start. अब अगर देखें तो इसमें क्या क्या है, इंट्रोडक्शन, रैंडम एक्सपेरिमेंटल, इवेंट, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल्स, उसमें फिर इवेंट में कितने हैं, सिंपल, कंपाउंड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स. ओके, देन अगेन इन डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फिर से कितने में डिवाइडेड है, देखो, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सेट थियोरेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. Then again modern definition of probability is again divided into addition theorem, conditional probability, compound theorem of probability. Then compound theorem of probability is divided into compound probability. And last topic, that is random variable, it is again divided into two, that is probability distribution and expected value of random variable. ठीक है, so in this probability first we are going to see इवेंट्स. सो इवेंट जो जिससे हम फेमिलियर है कि इवेंट क्या होगा, राइट. जैसे कॉइन टॉस किया तो क्या होगा, अगर डाइस थ्रो कर रहे हैं तो क्या होगा, कार्ड्स 52 कार्ड्स में हम कार्ड्स को शफल करके अगर हम कोई एक कार्ड ड्रॉ करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या इवेंट होगा, ये सब हम जानते हैं पहले से. करेक्ट, हम कर चुके हैं पहले, है ना, 9th-10th में. या सो हियर we are going to discuss about the events. One is simple event, then compound, then mutually exclusive event, exhaustive event and equally likely event. तो हर एक को हम डिटेल में समझेंगे और उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. सी इंट्रोडक्शन. The term probably in all likelihood, chance, odds in favor, odds against are too familiar nowadays and they have their origin in a branch of mathematics known as probability. So the terms probably in all likelihood, that is chance, odds in favor या odds against, are too familiar nowadays and they have their origin in a branch of mathematics. तो branch of mathematics में उनका एक खुद का origin है, खुद का क्या बोलते हैं, अस्तित्व है. ओके, तो नोन एज प्रोबेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी. इन रिसेंट टाइम प्रोबेबिलिटी हैज डेवलप्ड इटसेल्फ इनटू अ फुल फ्लेज सब्जेक्ट एंड बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो क्या हुआ है, इन रिसेंट टाइम प्रोबेबिलिटी हैज डेवलप्ड इटसेल्फ इनटू अ फुल फ्लेज सब्जेक्ट. प्रोबेबिलिटी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है, फुल फ्लेज सब्जेक्ट बन चुका है
ठीक है, एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी बन चुका है. द थियोरीज ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड एस्टिमेशंस आर बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. सो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड estimation लगाना are all based on probability itself. So probability is one of the major subject in mathematics, or one of the major part of mathematics. ठीक है. It is rather surprising to know that the first application of probability was made by a group of mathematicians in Europe about 300 years back to enhance their chances of winning in different games of gambling. सो सी, प्रोबेबिलिटी की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? प्रोबेबिलिटी की शुरुआत 300 साल पहले यूरोप में कुछ मैथमेटिशियंस के बीच हुई थी, जो अपने गैम्बलिंग के विनिंग कितना, मतलब वो विन करेंगे, गैम्बलिंग में कितने चांसेस है उनके विन करने के, वो पता करने के लिए उन्होंने प्रोबेबिलिटी की शुरुआत की थी. ठीक है. सो इट इज़ रैदर सरप्राइजिंग टू नो दैट द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वॉज मेड बाय अ ग्रुप ऑफ मैथमेटिशियंस इन यूरोप, about 300 years back to enhance their chance of winning in different games of gambling. ठीक है, gambling ये पता है ना आप लोगों को. Later on theory of probability was developed by Abraham de Moivre and Pierre Simon de Laplace of France. ठीक है, तो इन दोनों ने, Abraham de Moivre and Pierre Simon de Laplace of France, Reverend Thomas Bias and R.A. Fisher of England, Chebyshev, Markov, Khinchin, Kolmogorov of Russia, and many other noted mathematicians as well as statisticians. तो इन सब ने प्रोबेबिलिटी को एक एक लेवल आगे बढ़ाते बढ़ाते, मतलब उसको अभी एक मेजर सब्जेक्ट या एक मेजर चैप्टर बना दिया है. ठीक है, तो इन सब का हाथ है उसमें. Two broad divisions of probability are subjective probability and objective probability. Now, probability is divided into two major, that is subjective and objective. ठीक है, तो subjective probability क्या होता है? Subjective probability is basically dependent on personal judgment and experiences. तो probability जो है वो किस पे based है? Personal judgment पे based है. Personal judgment and experiences. And as such it may be influenced by the personal belief, attitude and bias of the person applying it. तो जो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली डिपेंड किस पे है? पर्सनल जजमेंट पे. हम क्या सोचते हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर बेस्ड है, और पर्टिकुलर पर्सन पे बेस्ड है कि वो क्या बिलीव करता है, वो क्या सोचता है. तो ये सब्जेक्टिव जो है वो उन सब पर डिपेंड है. ओके, उसके एटीट्यूड पे डिपेंड है. However, in the field of uncertainty, this would be quite helpful and it is being applied in the area of decision making management. और ये कहाँ पर अप्लाई होता है? डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट में अप्लाई होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन वो क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है. तो ये जो सब्जेक्टिव है उसके ऊपर हम उसमें यूज़ हो सकता है वो. तो इट इज़ पर्टिकुलर यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट. ओके, दिस सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर प्रेजेंट डिस्कशन. तो ये जो है वो हमारे प्रेजेंट डिस्कशन से एकदम आगे है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम कुछ करते हैं, या कोई कॉइन टॉस करते हैं, या बॉल्स बैग में से निकालते हैं, तो क्या इवेंट हो सकता है, क्या मतलब पॉसिबिलिटी है. करेक्ट. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इन द रिमेनिंग सेक्शन. रिमेनिंग सेक्शन में हम ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट. In order to develop a sound knowledge about probability, it is necessary to get ourselves familiar with a few terms. ठीक है, तो probability के बारे में नॉलेज लेने से पहले हमें कुछ टर्म से फेमिलियर हो जाना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंट. एन एक्सपेरिमेंट में बी डिस्क्राइब्ड एज अ परफॉर्मेंस दैट प्रोड्यूसेस सर्टन रिजल्ट. तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि एन एक्सपेरिमेंट में बी डिस्क्राइब्ड एज अ परफॉर्मेंस. क्या परफॉर्म किया तो हमें क्या रिजल्ट मिला, सर्टन रिजल्ट मिला, तो इट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है. Random experiment. An experiment is defined to be random if the results of the experiment depend on chance only. तो random experiment क्या होता है? An experiment is defined to be random
कब हम उसे रैंडम कहते हैं? इफ द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स ऑन द चांस ओनली। तो कौन सा चांस उसने लिया, उसके ऊपर जो रिजल्ट आया वो हम कह सकते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट था। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, तो एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड व्हेन वी गेट टू आउटकम्स, हेड देन वी गेट टू आउटकम्स, राइट, एक तो हेड या तो टेल। इट इज इम्पॉसिबल टू से इन एडवांस वेदर अ हेड और अ टेल वुड टर्न अप व्हेन वी टॉस द कॉइन वंस। तो अगर मैंने एक बार कॉइन टॉस किया तो ये बहुत डिफिकल्ट है बताना कि हेड गिरेगा कि टेल गिरेगा, यस और नो? यस, तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू से दैट। Thus tossing a coin is an example of a random experiment। तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया, मैंने वो चांस लिया और जब जो रिजल्ट आया तो वो मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। ठीक है, सिमिलरली रोलिंग अ डाइस, तो अब जब हम डाइस खेलते हैं, ये सब्सिडी का डाइस, हाँ, तो जब डाइस हम थ्रो करते हैं तो ड्राइंग वो भी एक एग्जाम्पल है। ड्राइंग आइटम्स फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग बोथ डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव आइटम्स, तो बॉक्स में से कुछ डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव आइटम्स निकालना है। या ड्राइंग कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स एक्सेट्रा आर ऑल रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है। ओके, नाउ सो आर यू फेमिलियर विद द टर्म एक्सपेरिमेंट्स एंड व्हाट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट? यस, नाउ नेक्स्ट मूव टू द इवेंट। अब इवेंट क्या है? तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी जानना है तो हमें ये टर्म्स से फेमिलियर होना पड़ेगा। ओके, अब इवेंट्स, द रिजल्ट or outcomes of a random experiment are known as event. What? The results or outcomes of a random experiment are known as event। तो जो भी random experiment का जो result आया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉइन टॉस किया और मेरा हेड आया, तो जो हेड है वो मेरा क्या होगा? इवेंट होगा, करेक्ट। समटाइम्स इवेंट में बी कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स। द इवेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब इवेंट्स को हमने टू में डिवाइड किया, एक तो सिंपल और एलिमेंट्री और दूसरा कंपोजिट और कंपाउंड। ओके, सो एन इवेंट इज नोन टू बी सिंपल इफ इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू फर्दर इवेंट्स। तो क्या हो रहा है? एन इवेंट इज नोन टू बी सिंपल। कब हम कह सकते हैं कि वो इवेंट सिंपल है? इफ इट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू फर्दर इवेंट्स, जब हम उसको फिर से और कुछ इवेंट्स में डिकम्पोज नहीं कर सकते, फर्दर कुछ इवेंट्स को मैं डिकम्पोज नहीं कर सकते। अंडरलाइन करो। ओके, tossing a coin once provides us two simple events, namely head and tail. On the other hand, a composite event is one that can be decomposed into two or more events। तो कंपोजिट इवेंट क्या है? जो हम डिकम्पोज कर सकते हैं टू या उससे ज़्यादा इवेंट्स में, हम फिर से उसको ये कर सकते हैं। गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंपोजिट इवेंट एज इट कैन बी स्प्लिट इनटू द इवेंट्स HT एंड TH विच आर बोथ एलिमेंट्री इवेंट्स। तो समझ में आया? तो फर्स्ट जो था सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, उसमें मैंने क्या किया? सिर्फ एक कॉइन टॉस किया और मेरे पास या तो हेड होगा या तो टेल होगा, उसके अलावा मेरे पास और कोई रिजल्ट नहीं आएगा, करेक्ट। दो हेड नहीं आ सकते, दो टेल नहीं आ सकते, हाँ, तो हम उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। जो इवेंट आया उसको हम वापस फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते। बट कंपोजिट इवेंट क्या होता है? जब मैंने टू कॉइन टॉस किया तो मेरे दो हेड आ सकते हैं या दो टेल आ सकते हैं, यस, या HT TH आ सकते हैं, तो मैं वापस उसको फर्दर डिकम्पोज कर पा रही हूँ। ठीक है, तो वो हमारा होता है कंपोजिट इवेंट विच आर बोथ एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, ओके, तो नाउ मूव टू नेक्स्ट। सो एक्सपेरिमेंट इज क्लियर टू यू, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज क्लियर टू यू एंड इवेंट्स आर क्लियर टू यू। ठीक है, इवेंट्स फिर से दो में क्लासिफाइड हुआ है, एक सिंपल और एलिमेंट्री और दूसरा कंपोजिट और कंपाउंड। ठीक है, क्लियर? यस, नाउ मूव टू द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इनकम्पैटिबल इवेंट्स, दैट इज पेज नंबर 16.3। ओके, so a set of events A1, A2, A3 is known to be mutually exclusive if not more than one of them can occur simultaneously। अब क्या कह रहा है वो? A set of events A1, A2, A3 is known to be mutually exclusive। कब वो mutually exclusive होगा? If not more than one of them can occur simultaneously, जब एक से ज़्यादा ऑकर नहीं करेगा साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगी, वेट। Thus, occurrence of one such event implies the non-occurrence of the other event of the set। मीन्स अगर एक चीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ नहीं हो सकती है। जब ऐसा कुछ इवेंट आता है तो वो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, once a coin is tossed we get two mutually exclusive event, head and tail।
यस तो एक बार कॉइन टॉस किया हमने तो 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमें मिलेंगे हेड और टेल, ठीक है। इसका एक शॉर्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगी। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ रोहन इज़ 5 years ओल्ड, ठीक है, रोहन इज़ 5 years ओल्ड, तो रोहन एक लड़का है जो कि 5 साल का है, ठीक है। अब ही स्टडी इन कॉलेज, अब मैं दूसरी बात बता रही हूँ कि ही स्टडी इन कॉलेज, तो अभी ये दोनों बात पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल कि रोहन जो लड़का 5 साल का है वो कॉलेज में पढ़ रहा है? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। मीन्स इन दोनों में से कोई एक बात ही सही बात है, वन इज करेक्ट, आइदर ही इज ऑफ 5 years और ही इज इन अ कॉलेज, करेक्ट, यस। तो जब ऐसे दो सिचुएशन या दो कंडीशन साथ में दी जाती है जो दोनों साथ में नहीं आ सकती है, कोई एक ही सही होगी, कोई एक ही करेक्ट होगी या कोई एक ही इवेंट ऑकर हो सकती है, तब हम उसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इनकम्पैटिबल इवेंट्स। क्लियर? यस, समझ में आ रही है बात? ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। Now what is exhaustive events? The events A1, A2, A3 ... are known to form an exhaustive set if one of these events must necessarily occur. तो ये कब हम बोल सकते हैं कि exhaustive event है? जब one of these event must necessarily occur, एक event necessarily occur होनी चाहिए, ठीक है, एक event होनी चाहिए, ओके। For example, as an example, the two events head and tail when a coin is tossed once are head and tail when a coin is tossed once, correct, are exhaustive as no other event except these two can occur. समझ में आ रही है? मीन्स जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं और जिसमें हेड या टेल गिरता है, तो हेड या टेल इनके अलावा और कुछ तीसरा ऑप्शन आएगा क्या? नहीं आएगा, या तो हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आ सकता है। तो जब ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन होती है या ऐसा इवेंट होता है तब हम उसे कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है, कि पर्टिकुलर ये एक तो आना ही चाहिए, क्योंकि दो ही है, उनमें से एक तो पर्टिकुलरली ऑकर होगा ही। जैसे मैंने कॉइन टॉस किया तो मेरे दिमाग में ये बात तो फिक्स है कि या तो हेड गिरेगा या तो टेल, उन दोनों में से कोई एक तो ज़रूरी गिरेगा, बट दोनों गिरेगा ऐसा होगा क्या? नहीं। या कुछ और गिरेगा? नहीं, ओके। That is called as exhaustive event. Now next last, equally likely events or mutually symmetric events or equiprobable events. तो ये सारे एक ही के नाम है, that is equally likely events के, okay? अब ये क्या होता है? The events of a random experiment are known to be equally likely when all necessary evidence are taken into account. क्या कह रहा है? The events of a random experiment are known to be equally likely when all the necessary evidence are taken into account. जब सारे necessary evidence को हम एक साथ लेते हैं तब हम कह सकते हैं कि equally likely events, जैसे कि no event is expected to occur more frequently as compared to the other event of the sets of event. ठीक है, no event is expected to occur more frequently, मतलब कोई भी इवेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो more frequently occur हो रहा है, ठीक है। The two events head and tail when a coin is tossed is an example of a pair of equally likely event because there is no reason to assume that head would occur more frequently as compared to tail. तो जैसे कि मैंने कहा जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड गिरता है या तो टेल गिरता है, ठीक है। अब दोनों की पॉसिबिलिटी कितनी है? इक्वली होगी दोनों की पॉसिबिलिटी। हेड कितने बार गिरेगा, टेल कितने बार गिरेगा, मोस्टली इक्वली होगा पॉसिबिलिटी। ज़रूरी नहीं है, मतलब हम कह नहीं सकते कॉन्फिडेंटली कि नहीं, हो सकता है टेल ही ज़्यादा बार गिरे या हो सकता है हेड ही ज़्यादा बार गिरे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो व्हेन सच कंडीशन या सच इवेंट ऑकर्स जहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों की पॉसिबिलिटी मोस्टली इक्वल है, तो हम वहाँ पे कह सकते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स है। ओके, समझ में आया? फिर से मैं बताऊँगी कि देखो जब कहा गया है द टू इवेंट्स हेड एंड टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड इन एन एग्जांपल ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स बिकॉज देयर इज नो रीजन टू एज्यूम दैट हेड वुड ऑकर मोर फ्रिक्वेंटली एज कंपेयर टू टेल। ठीक है, हेड ज़्यादा बार गिरेगा देन टेल, ऐसी कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। ओके, तो जब ऐसा है तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? इक्वली, एंड व्हेन इट इज इक्वल पॉसिबिलिटी तो इक्वली लाइकली इवेंट इज ऑकर। ओके, क्लियर? सो होप ऑल द टर्म्स आर इक्वल टू यू। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, exhaustive event, equally likely event. Yes, okay. Now before going into the next
page number 16.4. 16.4. See. This classical definition of probability has the following demerits or limitations दिया गया है. Yes, just एक बार देख लेते हैं. It is applicable only when the total number of event is finite. ठीक है, जब हम कब अप्लाई कर सकते हैं इसे, जब टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो है ना वो फिनाइट है. फिनाइट मतलब हम काउंट कर सकते हैं. इनफिनाइट मतलब अनलिमिटेड, करेक्ट, जहाँ पे ख़त्म ही नहीं होता है. फिनाइट मतलब हमें पता है कितने नंबर्स हैं, तो तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. इट कैन बी यूज ओनली व्हेन द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली और इक्वी प्रोबेबल. दिस एजम्पशन इज मेड वेल बिफोर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म. तो दूसरी कंडीशन, दूसरा मेरिट या डीमेरिट क्या है कि ये तभी यूज होगा जब वो इक्वली लाइकली है. ठीक है, इवेंट. थर्ड, this definition has only a limited field of application like coin tossing, dice throwing, drawing cards etc. where the possible events are known well in advance. और इसमें ज़्यादातर वही चीज़ें होती है जैसे कॉइन टॉस किया, कार्ड्स का, डाइस का, बॉल्स का, येलो बॉल ग्रीन बॉल निकालना है बैग में से, सच दैट. तो और उसकी पॉसिबल इवेंट्स हमें मोस्टली पहले से पता रहती है. फॉर एग्जांपल अभी कॉइन है तो कॉइन के 2 ही केसेस है, या तो हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा, ये हमें पता है. डाइस है तो डाइस के 6 केसेस है सिर्फ, या तो 1 गिरेगा या तो 2 गिरेगा या तो 3 या 4 या 5 या 6, या 2 डाइस थ्रो किया तो हमें पता है कि 36 इवेंट्स 36 आता है टोटल एन. ठीक है, तो ये सब हमें पता है. तो इन द फील्ड ऑफ अनसर्टेनिटी और वेयर नो प्रायर नॉलेज इज प्रोवाइडेड, दिस डेफिनेशन इज इनएप्लीकेबल. Okay, now in connection with classical definition of probability we may note the following points. So first A वाला point देखिए, the probability of an event lies between 0 and 1. तो probability of जो event है ना वो lies करता है between 0 and 1 के, तो both क्या हो जाता है, inclusive हो जाता है. ठीक है, that is 0 is smaller or equal to P of A, मतलब probability of event A is स्मॉलर और इक्वल टू देन 1. तो दोनों 0 भी आ गया, 1 भी आ गया और प्रोबेबिलिटी उसके बीच में फिट हो गई. ठीक है, और 0 से बड़ा है प्रोबेबिलिटी और 1 से छोटा है प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ए इज नोन टू बी एन इम्पॉसिबल इवेंट, एंड व्हेन पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ए इज नोन टू बी अ श्योर इवेंट. तो ये भी अंडरलाइन कर लीजिए. तो जब P ऑफ ए, इवेंट P, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 0 आ रही है इज इक्वल टू 0, तो हम उसे कह सकते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि 0 तो नहीं आ सकती है. ओके, और जब हम कहेंगे कि P ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो हम उसे कहेंगे कि ए इज नोन एज द श्योर इवेंट. ओके, नेक्स्ट, नॉन ऑक्यूरेंस, सेकेंड पॉइंट, सॉरी, बी पॉइंट. नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए रेज टू सी और ए रेज टू बार, एंड इट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए. The event A along with its complementary A dash forms a set of mutually exclusive and exhaustive event. ठीक है, तो P of A, that is P of A plus P of A dash is equal to क्या हो जाता है, 1 हो जाता है. तो P of A dash is equal to 1 minus P of A, तो 1 minus P of A कैसे आएगा, measure of A upon M, M of A upon M, that is M minus M of A upon M. ये फॉर्मूला है. ओके, नेक्स्ट C. The ratio of number of favorable events to the number of unfavorable event is known as odds in favor of the event A, and its inverse ratio is known as odds against the event A. Odds in favor of A and odds against the favor of A. Okay. Okay, यहाँ तक हमारा थियोरी जो किया है हमने, उसके बेस पे जो सम्स है हम पहले वो सॉल्व कर लेते. ठीक है, देन वी विल मूव अगेन टू द थियोरी पार्ट, but this much is very important. ठीक है, तो now come to the exercise 16A. yeah, come to exercise 16A first. yeah, so set A, exercise set A 16 का. okay, page number 16.39. yes, open. yeah, now let's start. Write down the correct answer. each question carries 1 mark. कहाँ गया आपसे, फर्स्ट देखिए, इनिशियली प्रोबेबिलिटी वॉज अ ब्रांच ऑफ. द प्रोबेबिलिटी इनिशियली मतलब स्टार्टिंग स्टेज में किसका ब्रांच था, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स की मैथमेटिक्स. तो इनिशियली प्रोबेबिलिटी जो था वो मैथमेटिक्स का ब्रांच था, उसके बाद वो स्टैटिस्टिक्स बन गया. ठीक है, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स. तो इनिशियली प्रोबेबिलिटी वॉज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. so ऑप्शन 1 का आंसर इज सी. Correct. Now next, question number 2.
टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर. सो टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने देखा था, एक सब्जेक्टिव था और एक ऑब्जेक्टिव था. करेक्ट, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. हाँ, तो ए ऑप्शन. सी, ए ऑप्शन इज सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी. बी ऑप्शन इज डिडक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड नॉन डिडक्टिव प्रोबेबिलिटी. तो हमने सुना नहीं अभी तक. C is statistical probability and mathematical probability, and D is none of this. So हमारा correct answer is two broad divisions of probability are option A, subjective probability and objective probability. Correct? Yeah. Now, so tick on A. Third question now. Subjective probability may be used in. तो subjective probability हमने देखा decision making management में use होती है. Yeah. So subjective probability may be used in mathematics, statistics, मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी. तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में बी यूज्ड इन मैनेजमेंट. करेक्ट, डिसीजन मेकिंग. मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होती है. सो वी विल टिक फॉर मैनेजमेंट. दैट इज सी ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. एन एक्सपेरिमेंट इज नोन टू बी रैंडम इफ द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. तो हम कब बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो है वो रैंडम है? जब रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट A option is can not be predicted, B option can be predicted, C option can be split into further experiments and D option can be selected at random. तो हम कब बोलते हैं कि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है? जब हम उसे सेलेक्ट करते हैं रैंडम बेसिस पे. करेक्ट, चांस बेसिस पे, रैंडम बेसिस पे. सो आवर करेक्ट आंसर इज डी, कैन बी सेलेक्टेड एट रैंडम. तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाता है. ओके, यस. Fifth question. So answer for question number 4 is D. Option D. Okay. Okay. Now fifth question. An event that can be split into further event is known as. तो कोई भी इवेंट जिसको हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं, हाँ, उसे हम कौन सा इवेंट कहेंगे? कॉम्प्लेक्स इवेंट, मिक्स्ड इवेंट, सिंपल इवेंट या कंपोजिट इवेंट. याद आया कुछ? हमने देखा था दो इवेंट है, एक सिंपल और एक कंपोजिट इवेंट या कंपाउंड इवेंट. करेक्ट, सिंपल इवेंट को हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते और कंपोजिट इवेंट को हम फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डिकम्पोज स्प्लिट करना, फर्दर वापस ले सकते हैं हम कुछ. तो एन इवेंट दैट कैन बी स्प्लिट इनटू फर्दर इवेंट इज नोन एज ऑप्शन डी, कंपोजिट इवेंट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी. Now next question number 6. Which of the following pairs of events are mutually exclusive? तो हमें बताना है अभी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन सा पेयर है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, याद आया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? क्या मैंने एग्जांपल दिया था वहाँ पे कि राजू जो है वो 5 साल का है और राजू जो है वो कॉलेज जाता है. तो दोनों भी एक साथ नहीं आ सकते एक जगह पर, क्योंकि राजू अगर 5 साल का है तो वो कॉलेज कैसे जा सकता है? करेक्ट, और अगर राजू कॉलेज जाता है तो वो 5 साल का कैसे हो सकता है? राइट. तो ये दोनों जो इवेंट मैंने दिए हैं वो एक साथ प्रॉपर नहीं बैठे. ओके, तो सच इवेंट्स ऑकर्स इट इज कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. नाउ लेट्स चेक इन दिस क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. ओके, तो क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ओके, सो सी ऑप्शन ए, द स्टूडेंट्स रीड्स इन अ स्कूल, ही स्टडीज फिलोसफी. तो स्टूडेंट स्कूल में रीड कर रहे हैं और वो फिलोसफी पढ़ रहे हैं, तो ठीक है. ओके, बी ऑप्शन, राजू वॉज बॉर्न इन इंडिया और ही इज़ अ फाइन इंजीनियर. तो राजू इंडिया में बॉर्न हुआ और वो एक फाइन इंजीनियर है, तो ये भी ठीक है. नेक्स्ट, रूमा इज 16 years ओल्ड, शी इज़ अ गुड सिंगर. तो रूमा जो है वो 16 साल की है और एक बहुत अच्छी सिंगर भी है, तो ये भी ठीक है. ओके, नेक्स्ट डी ऑप्शन, पीटर इज अंडर 15 years ऑफ एज. पीटर जो है वो 15 years के नीचे है, अंडर मतलब कम है, 15 साल से छोटा है. ठीक है, पीटर इज़ अ वोटर ऑफ कोलकाता. अब पीटर जो है वो कोलकाता का वोटर भी है, तो क्या ये हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नो, राइट, क्योंकि जो वोटिंग एज है, यस, मिनिमम वोटिंग एज जो है वो 18 years है. करेक्ट, बट पीटर जो है वो तो 15 साल से छोटा है. तो अगर वो 15 साल से छोटा है तो वो कोलकाता का वोटर कैसे हो सकता है? तो ये दोनों जो इवेंट्स दिए वो एक साथ प्रॉपर नहीं बैठ रही है. तो दिस इज अवर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. क्लियर? यस, समझ में आई बात? मैं फिर से बता रही हूँ, पीटर जो है वो 15 साल से छोटा है और पीटर इज अ वोटर ऑफ कोलकाता कह रहे हैं वो लोग. तो पीटर जो है वो 15 साल से अगर छोटा है तो वो कोलकाता का वोटर कैसे हो सकता है? बिकॉज वोटर का मिनिमम एज जो है वो 18 years है, 18 एंड अबव है. करेक्ट, तो ये दो कंडीशन जो है वो एक साथ लाइन नहीं कर रही है. सो दिस सच कंडीशन या सच इवेंट्स आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ओके, सिंपल. यस, सो टिक फॉर डी. तो
क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज डी। ओके, सब डी 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 आ रहे क्या? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B। अब सिंपली वो पूछ रहा है कि अगर P ऑफ A और P ऑफ B सेम है, इक्वल है, देन तो क्या? तो A बोल रहा है कि A एंड B आर द सेम इवेंट्स, A और B जो है ना वो सेम इवेंट होंगे, या B ऑप्शन बोल रहा है कि A एंड B मस्ट बी सेम इवेंट्स, मस्ट बी सेम, यहाँ पे है बोल रहा है, यहाँ पे मस्ट बी बोल रहा है, और सी ऑप्शन बोल रहा है A एंड B मे बी डिफरेंट इवेंट्स, A एंड B मे बी डिफरेंट इवेंट्स, और डी ऑप्शन बोल रहा है A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तब इसमें से कौन सा करेक्ट है? इसमें से ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन सी, जो कि A एंड B मे बी डिफरेंट इवेंट्स। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब फॉर एग्जांपल मैंने इवेंट A को, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैंने एक कॉइन टॉस किया, ठीक है, एक कॉइन टॉस किया, क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरे हेड गिरे, प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेरी हेड गिरेगी, तो मेरा एन कितना है? 2 है, एक हेड एंड टेल, ठीक है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो इवेंट मेरा कितना होगा, हेड गिरने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? 1, तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1/2, करेक्ट, 1/2 मेरा आंसर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालूंगी मैं कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, ओके, ऑफ गेटिंग अ टेल, तो फिर से मेरा एन जो है, सम ऑफ एन जो है वो 2 ही है, करेक्ट, हेड एंड टेल दोनों भी। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है, और पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 1, एक ही टेल आ सकता है, तो 1/2 आया, तो मेरा प्रोबेबिलिटी ए भी 1/2 आया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 1/2 आया, करेक्ट। तो दोनों क्या सेम है? नहीं, इसमें हमने हेड के लिए निकाला, इसमें हमने टेल के लिए निकाला, तो दोनों डिफरेंट है, बट फिर भी आंसर सेम है। ओके, सो इफ P ऑफ A एंड P ऑफ B इज इक्वल, देन A एंड B मे बी डिफरेंट इवेंट्स, राइट, डिफरेंट इवेंट हो सकते, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम इवेंट हो, इट कैन बी डिफरेंट इवेंट, ठीक है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 आवर आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरैक्शन B इज इक्वल टू 0, करेक्ट, उल्टा U तो क्या होता है? इंटरैक्शन, और सीधा U तो यूनियन होता है, ओके। तो ये इंटरैक्शन B पूछा यहाँ पे इज इक्वल टू 0, देन द 2 इवेंट्स A एंड B आर, तो अगर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और हम उसको इंटरैक्ट कर रहे हैं, साथ में ला रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? इक्वल तो नहीं होगा, एग्जॉस्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि एग्जॉस्टिव में कोई एक तो पर्टिकुलरली होना चाहिए, इंडिपेंडेंट भी नहीं होगा, तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आएगा, ठीक है। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरैक्शन B करेंगे, तो वहाँ पर हमारा इज इक्वल टू 0, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना, राइट ना, A इंटरैक्शन B हो ही नहीं सकता है, करेक्ट ना, हमने वही देखा ना कि दोनों कंडीशंस एक साथ फिट बैठ ही नहीं सकती है, तो जब हम उनको इंटरैक्ट साथ में लाते हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0, करेक्ट, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो 8 का आंसर है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो वी हैव कंप्लीटेड 16.39 पेज। नाउ नेक्स्ट मूव टू पेज नंबर 16.40. ओके, so not getting bored na? Yes, enjoying, I hope so, huh? So let's start question number 9. If for 2 events A and B, probability of A union B is equal to 1, then A and B are, अब वो क्या बोल रहा है कि अगर 2 इवेंट्स है A और B, ठीक है, और उनका हम अगर यूनियन कर देते हैं तो 1 आ रहा है, देन A एंड B आर, तो A एंड B क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा क्या? नहीं, हमने देखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट 0 होता है, क्योंकि उनको हम नहीं ला सकते, ठीक है। इक्वली लाइकली इवेंट होगा क्या? इक्वली लाइकली इवेंट होगा, दोनों भी सेम, नहीं। डिपेंडेंट इवेंट, डी ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, एग्जॉस्टिव इवेंट, क्योंकि यहाँ पर कोई एक तो पक्का मतलब ओरिजिन होना चाहिए, नेसेसरली इवेंट होना चाहिए, तो जब उनको हम यूनियन करते हैं, उनको हम जोड़ते हैं, तो पक्का आंसर एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे एग्जॉस्टिव इवेंट ले रहे हैं। तो इफ फॉर 2 इवेंट्स A एंड B, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B करते हैं, तो आप याद रखिए जब भी प्रोबेबिलिटी A इंटरैक्शन B करते हैं और हमें आंसर 0 आता है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B करते हैं और आंसर 1 आता है तो वो एक्सॉस्टिव इवेंट होगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ एन अनबेस्ड कॉइन इज टॉस्ड वंस, अगर एक अनबेस्ड कॉइन को हमने टॉस किया वंस, ओके, देन द 2 इवेंट हेड एंड टेल आर, तो क्या हो वो हेड एंड टेल आर क्या हो सकता है?
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकता है, एग्जॉस्टिव भी हो सकता है, इक्वली लाइकली भी हो सकता है। मीन्स एग्जॉस्टिव मतलब कोई तो एक पक्का गिरेगा ही गिरेगा, इक्वल लाइकली मतलब दोनों सेम भी गिर सकते हैं, जितने बार हेड गिरा उतने बार टेल भी गिर सकता है। करेक्ट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब हेड गिरे तो टेल भी वही गिरेगा, नहीं, तो मतलब तीनों भी होगा, राइट। कोई एक पर्टिकुलरली हम नहीं बोल सकते कि मतलब म्यूचुअली होगा या एग्जॉस्टिव ही होगा या इक्वली होगा, मतलब जितने बार टेल गिरा उतने बार हेड गिरेगा या जितने बार टेल गिरा उतने बार हेड नहीं गिरेगा, ऐसा हम बता नहीं सकते। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, ऑल दिस, ए बी एंड सी तीनों भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इफ एन अनबेस्ड कॉइन इज टॉस्ड वंस देन द टू इवेंट्स हेड एंड टेल आर ऑल ऑफ दिस, म्यूचुअली भी होगा, एग्जॉस्टिव भी होगा, इक्वली भी होगा। ओके, सो ऑप्शन D is the correct answer for question number 10. Now next question number 11. If probability of A is equal to probability of B, then the two events A and B are. अब ये क्वेश्चन देखो आप, if probability of A is equal to probability of B कह रहा है वो, ओके। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि P of A is equal to P of B, then the two events A and B are. ऑप्शन हमें क्या दिया, देखिए A इंडिपेंडेंट दिया है, B डिपेंडेंट दिया है, C इक्वली लाइकली दिया है और D बोथ A एंड C दिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ A B अगर सेम है तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। नहीं, मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हेड और टेल गिर रहे, तो हमने हेड का निकाला तो 1/2 आया, टेल का निकाला तो भी 1/2 आया, तो प्रोबेबिलिटी तो सेम आई, करेक्ट। बट जो इवेंट था वो सेम था क्या, नहीं, ये हमने हेड के लिए निकाला था, ये हमने टेल के लिए निकाला था, तो इवेंट डिफरेंट था। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं क्या, तो नहीं करते। तो बी ऑप्शन तो हमारा नहीं है। बट ए वो इंडिपेंडेंट है क्या, तो है, बट एक्चुअली यहाँ पे आंसर, क्योंकि हमें ऑप्शन इक्वली लाइकली भी दिया है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि वो दोनों सेम मतलब कोई एक तो है, मतलब एक तो प्रॉपरली लेगा ही लेगा। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं कहूँ कि टेल जितने बार गिरा है, पॉसिबिलिटी कि हेड भी उतने बार ही गिरे, तो इक्वल लाइकली पॉसिबिलिटी वहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पे ये हो जाता है, बट हम यहाँ पर सी को टिक करेंगे क्योंकि इक्वली लाइकली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि दोनों की पॉसिबिलिटीज़ है साथ में आने की, तो दोनों सेम हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो इक्वली लाइकली है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर इज सी, इक्वली लाइकली। ओके, नाउ 12. If for two events A and B, probability of A interaction B is not equal to probability of A into probability of B, then the two events A and B are. अब यहाँ पे क्या कहा गया, देखो, read the question. ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए जो कि पूछा, if for two events A and B, P A interaction B is not equal to P of A into P of B, then the two events A and B are. Option A independent, option B dependent, option C not equally likely and option D not exhaustive, right? तो इस क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए हमें पेज नंबर 16.18 पर जाना होगा। सी 16.18 पर 16.18 पर थोड़ा सा नीचे, जहाँ पर हाफ पेज के थोड़ा नीचे देखिए, इन द अबाउ एग्जाम्पल, if the balls are drawn with the replacement, then the two events B1 and R2 are independent and we have probability of B2 upon R2 is equal to probability of B2। उसके नीचे जहाँ पे लिखा है 16.28, करेक्ट, 16.28 जहाँ पे लिखा है, is the necessary and sufficient condition for the independence of two events। तो अगर दो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंस होने चाहिए, तो जो नीचे की जो कंडीशंस दी है ना, वो मस्ट है, वो इम्पॉर्टेंट है। In a similar manner, the three events A, B, C are known as independent if the following conditions hold। तो वो इंडिपेंडेंट कब कहलाएगी, जब वो ये फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड करेगी। See the what are the conditions? Probability of A interaction B is equal to probability of A into probability of B कहा गया, करेक्ट। हमारे क्वेश्चन में probability of A interaction B is not equal to probability of A into probability of B का not equal कहा गया, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब वो इक्वल हो, करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
तो ये जब इक्वल हो तो वो इंडिपेंडेंट है, और अगर इक्वल ना हो तो डिपेंडेंट है। करेक्ट? यस। सो कम बैक। तो ये पूरा आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है? 16.28 जो लिखा है वो पूरा पढ़ लेना 16.18 पेज पर। So coming back to the question, so if two events A and B, probability of A interaction B is not equal to probability of A into probability of B, then the two events A and B are dependent. Yes? Okay. So answer for question number 12 is B. होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रही है बात? हाँ, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर कब वो इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, जब वो इक्वल होंगे, बट यहाँ पे नॉट इक्वल है, मीन्स वो डिपेंडेंट है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 ही प्रिंट हुआ है वो भी, बट इट इज 13। ओके, सो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देन सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी if probability of A upon B is equal to probability of, okay, so probability of PA, then again same page, पेज नंबर 16.18 पे आ जाइए, जो मैंने लाइन सबसे पहले पढ़ी थी, जो कि इन द above example if the balls are drawn with replacement then the two events B2 and R2 are independent and we have P probability B2 upon R2 is equal to probability B2। करेक्ट? सेम यही कहा गया, देखो probability B2 upon R2 is equal to probability of B2, और हमारे क्वेश्चन में भी वही कहा है probability A upon B is equal to probability A। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, कब होगा, जब वो इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। करेक्ट? तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन ए है, वो A इज इंडिपेंडेंट ऑफ B बोला है, और B इज इंडिपेंडेंट, बी ऑप्शन जो है वो B इज इंडिपेंडेंट ऑफ A कहा गया है, और सी ऑप्शन जो है वो बोला बी इज डिपेंडेंट ऑफ ए। तो सी ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि बी इज डिपेंडेंट ऑफ ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। बट हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है और बी भी करेक्ट, दोनों करेक्ट थी, क्योंकि ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी। उसने कहा था कि दोनों भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, तो ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी एज वेल एज बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, जो कि बोथ ए एंड बी। समझ में आ रहा है? यस, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन अगर टू इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है तो क्या हो सकता है? ए एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आर इंडिपेंडेंट, बी एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आर इंडिपेंडेंट, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, डी ऑल ऑफ दिस ए बी एंड सी। ठीक है? अगेन कम टू पेज नंबर 16.18, सी लास्ट पैराग्राफ देखो, इट मे बी फर्दर नोटेड दैट if two events A and B are independent then the following pairs of events are also independent। अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो ये जो पेयर्स है, जो अलग अलग पेयर देंगे वो लोग, वो भी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे, जो कि A एंड B का डैश, A डैश एंड B, और A डैश एंड B डैश। सेम हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि अगर इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन तो क्या होगा? ए एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मीन्स बी डैश। करेक्ट? तो ए और बी डैश इंडिपेंडेंट है। दूसरा बी ऑप्शन पूछा है बी और ए डैश इंडिपेंडेंट है। तीसरा पूछा है ए डैश और बी डैश इंडिपेंडेंट है। तो ये तीनों भी करेक्ट है। यस, हमने देखा अभी तीनों भी राइट आंसर है, तो हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मीन्स ऑल ऑफ दिस ए बी एंड सी। ओके, ठीक है, इजी। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन वो बोल रहा है कि इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन क्या हो सकता है? दे कैन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बी दे कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टिव, बोथ बी एंड सी। अब ओके, यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, एक बात आपको याद रखनी है, अगर ऐसे कहा गया है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। ठीक है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, और अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वो फिर ए एंड बी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। ठीक है? अगर कहा गया है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, और अगर ऐसे कहा है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ए एंड बी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। ठीक है? तो 15 और 16th क्वेश्चन सी वाइस वर्सा दिया है। पहले मैं 15th क्वेश्चन में बोला है इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट,
वो इंडिपेंडेंट है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि दे कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी। ओके, 16 क्वेश्चन उसका ही उल्टा वाइस वर्सा दिया है। इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो बोल रहे हैं कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हमने क्या देखा, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो सी ऑप्शन, दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस then the events occurrence of one head, occurrence of two heads and occurrence of no head are, तो if a coin is tossed twice then the events occurrence of one head, occurrence of two head and occurrence of no head are, तो अगर एक दो कॉइन मैंने टॉस किया है देन द इवेंट ऑक्यूरेंस मतलब क्या होगा कि ऑक्यूरेंस ऑफ एक कॉइन या दो कॉइन या तीन कॉइन का क्या होगा, इवेंट, ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट होगा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है इंडिपेंडेंट, दूसरा ऑप्शन है इक्वली लाइकली, तीसरा ऑप्शन है नॉट इक्वली लाइकली और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा। ठीक है, इक्वली लाइकली भी नहीं होगा, क्योंकि इक्वली लाइकली कब हो सकता है, जब अगर एक कॉइन टॉस किया है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हेड गिरे और क्या पॉसिबिलिटी है टेल गिरे, दोनों को उतना ही इंपॉर्टेंस मिलेगा कि उतनी पॉसिबिलिटी जितनी बार हेड गिरेगा उतनी पॉसिबिलिटी जितनी बार टेल गिरेगा, है ना। तो इक्वली लाइकली तो नहीं हो सकता है, तो सी ऑप्शन नॉट इक्वली लाइकली। यस, तो कोई इक्वली लाइकली ऑप्शन नहीं है कि मतलब इतने बार ही गिरेगा इतने बार ही गिरेगा करके, ऐसा तो कुछ हम बोल नहीं सकते कि दो हेड ही गिरेंगे इतने बार, एक हेड ही गिरेगा इतने बार, तो हम मतलब वी कांट से दैट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है सी, नॉट इक्वली लाइकली। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 का द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन एज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन, तो प्रोबेबिलिटी हमने पहले में ही देखा था फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन में कि प्रोबेबिलिटी किन दोनों के बीच में होती है, 0 to 1 के बीच में, करेक्ट। तो 0 उससे बड़ी प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी। यस, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन एज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 1, सो विच इज़ योर ऑप्शन बी। ठीक है, तो 18th का आंसर है बी। Now question number 19, if P of A is equal to 0 then the event A, अगर P of A 0 है तो event A क्या होगा, will never happen। yes, है ना, अगर event का आंसर 0 हो रहा है मतलब वो occur ही नहीं कर रहा है, वो हो ही नहीं रहा है, तो हमारा ऑप्शन A होगा, will never happen। okay, question number 20, if P of A is equal to 1 then the event A is known as, तो अगर P of A अगर 1 आ रहा है, हाँ, then event A will be known as, बताया था मैंने, अगर 0 है तो नहीं हो रहा है, 1 है तो श्योर इवेंट है, करेक्ट। तो ए जो ऑप्शन दिया वो सिमेट्रिक इवेंट है, बी ऑप्शन डिपेंडेंट इवेंट है, सी प्रोबेबल इवेंट है और डी जो है श्योर इवेंट है। तो हमने देखा 0 होता है तो नॉन ऑक्यूरेंस होता है और 1 होगा तो श्योर इवेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो है डी, ऑप्शन डी, श्योर इवेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21,